Hello everyone, welcome to Inspire IQ. My name is Deepak Nagdali. This video is for class 10 CBSE students for the subject Information Technology code 402. We'll be tackling a frequent exam question from past papers on SQL from unit 3, that is database management systems. So if you are looking to score well in DBMS, you are in the right place. Let's get started. As you can see on the screen, this is the last year question paper. The question number 21 that states that consider a table product and write SQL queries for the following. As you can see in the table, there are 5 columns and 6 rows. The columns are also known as the fields, whereas the rows are also known as the records. So as we can see that the PID, PName, price, quantity, category, these all are the columns, or we can say these are the field, whereas the P01, P02, P04, P05, P08, P09, these are the records of the products, we can say. Okay, so let's discuss the questions that are there given below. The first question is to display names of all products whose category is domestic. First of all, let me tell you all about the standard command that is there for executing the complete table. Let me write it for you all. That command is the select command. Select command यूज होती है किसी भी रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए. लेट्स से यू वांट टू डिस्प्ले द कंप्लीट टेबल, कंप्लीट रिकॉर्ड, तो उसके लिए आप select command यूज करेंगे. सो द कमांड इज select star from product. This will be the command. Please let me check. The table is product. Yes, the table is product. The same table name we have to write here as well. ये table name है. Star means आपको सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है and select is used for displaying the record. So the select star from product command क्या एग्जीक्यूट करेगी? हमें पूरी टेबल एग्जीक्यूट करेगी, हमें पूरी टेबल दिखाएगी जो हमने अभी देखी थी. Okay, now we come to the first question. We come back to the first question that states that to display names of all products. हमको सिर्फ names चाहिए. You need to understand this part of the question that it is saying to display names of all products whose category is domestic. Now display तो करना है, so we all know that the select command will be used here. So select command क्या डिस्प्ले करना है? pname डिस्प्ले करना है, सिर्फ pname डिस्प्ले करना है. तो इस बार स्टार नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा? pname आएगा. So your command will be select pname. अब कहां से डिस्प्ले करना है? सेम टेबल से करना है, प्रोडक्ट टेबल से करना है. So from product it will be where. Now condition is given to us where category is domestic. Category बता रखी है कि वो domestic है. Is this clear? So we are going to write the command, the select command. Select command में हम किसका यूज करेंगे? स्टार यूज नहीं करेंगे. अब किसका यूज करेंगे हम? We are going to use the pname. So select pname from where? From the product table. Okay, so the product table we know. So क्या सेलेक्ट करना है हमें? pname सेलेक्ट करना है. कहां से सेलेक्ट करना है? प्रोडक्ट से सेलेक्ट करना है. क्या कोई कंडीशन है? हाँ, कंडीशन दी गई है. द कंडीशन इज वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करेंगे. हमको क्वेश्चन में दी गई थी द कैटेगरी वाज डोमेस्टिक, तो हम डोमेस्टिक यहाँ पे लिखेंगे. द कैटेगरी इज डोमेस्टिक. So this will be the answer for your first question, that is to display the name of the product whose category is domestic. So answer will be select, क्योंकि डिस्प्ले कर रहे हैं. क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? pname डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए pname लिखा है. टेबल का नाम लिखा है, किस टेबल से हमें ये डिस्प्ले करना है, और कैटेगरी मेंशन करी है डोमेस्टिक है. Is this clear? So answer for the question will be select pname from product where category is equal to domestic. I will be showing you the result as well. क्वेरी रन होगी, ये स्टेटमेंट जब रन होगा तो क्या एग्जीक्यूट करेगा वो मैं आपको ऑब्वियसली दिखाऊंगा अभी एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. बट दिस विल बी द प्रॉपर कमांड फॉर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन राइट नाउ. टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस. अब यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट नेम तो डिस्प्ले करना ही है, उसके साथ प्राइस भी डिस्प्ले करना है. अब कंडीशन सिंपल है, क्वांटिटी इज लेस देन 50. ओके, सो डिस्प्ले करने के लिए मैंने अभी बताया आपको which command you are going to use, the select you are going to use.
हमको क्या डिस्प्ले करना है, पी नेम डिस्प्ले करना है, सिंपल है, प्राइस डिस्प्ले करनी है, कहाँ से डिस्प्ले करनी है, प्रोडक्ट से डिस्प्ले करनी है। ओके, सो इतना तो सभी को समझ में आ गया हो कि इतनी स्टेटमेंट कैसे हम लिख रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन इज दैट वी हैव whose quantity is less than 50। क्या बोल रहा है, whose quantity is less than 50। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि क्वांटिटी लेस देन 50 होनी चाहिए। सो व्हाट वी कैन राइट, एज वी कैन सी क्वांटिटी हमारे पास एक फील्ड नेम है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहीं पे हम लिखेंगे सेलेक्ट पी नेम कॉमा प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, कंडीशन आ गई, वेयर क्वांटिटी is less than 50। So here we have the answer of second part that states that हमको क्या चाहिए, पी नेम चाहिए और प्राइस चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में उन्हीं का पी नेम और उन्हीं का प्राइस आएगा, किसका, जिसकी क्वांटिटी कम है 50 से। इज दिस क्लियर? सो एज यू कैन सी इन द टेबल 50 से कम किस किसका है, इट इज 50 लेस देन 50, दिस इज देयर, दिस इज देयर एंड दिस इज देयर। ओके, दिस इज द 50। अब हमने अगर लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो यहाँ पे आईलाइनर दैट इज द कैटेगरी इज मेकअप ये भी शो करता, बट हमने क्या लिखा है, लेस देन, हमको क्या दे रखा है, लेस देन 50। तो हमको जो रिकॉर्ड शो होंगे वो होंगे द बोर्ड, द लैम्प, द बेडशीट एंड द लैपटॉप। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। Now the third question that we have, to display price and quantity of laptop it is saying. So if we see here, laptop is here, laptop क्या बताया है हमें, p name बता रखा है कि laptop होना चाहिए। Is this clear? And उसका क्या डिस्प्ले करना है हमें, प्राइस डिस्प्ले करना है और क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है। So again we are going to use the select command here as well. So we are going to display, for displaying price and quantity हम simply लिख दे select, क्या डिस्प्ले करना है, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दीज फील्ड नेम्स, दैट इज सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी। कंडीशन, कंडीशन यहां पे देखो बाकी क्वेश्चंस में तो दिखा रखा था कि हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक, हुज क्वांटिटी इज लेस देन 50, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कैटेगरी क्या है, बट आपको ये अज्यूम करना है, आपको ये पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि कैटेगरी यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको ये पता लग जाना चाहिए। सो इट इज गिवन क्वांटिटी ऑफ लैपटॉप इट इज गिवन, एंड अभी मैंने आपको बताया लैपटॉप क्या है, पी नेम है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट प्राइस कॉमा क्वांटिटी वेयर पी नेम equal to laptop। So this will be your answer for the third one, that is to display price and quantity of laptop। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने price and quantity of laptop will be there। Okay, this completes the third part। Now we come to the last part, that is to display name and quantity of those products whose price is above 5000। जिसका प्राइस 5000 से ऊपर है उसका नेम डिस्प्ले करना है एंड क्वांटिटी डिस्प्ले करनी है। सो फॉर द नेम यू कैन सी हमारे पास जो फील्ड नेम है वो पी नेम है। इज दिस क्लियर? एंड नेक्स्ट पार्ट इज नेम हो गया, क्वांटिटी इज हियर, क्वांटिटी हमारे पास एक और फील्ड नेम है। इज दिस क्लियर? ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज अबव 5000। सो कंडीशन क्या है, प्राइस, दिस इज द कंडीशन, प्राइस इज अबव 5000। ओके, सो इसके लिए जो कमांड हम लिखेंगे इट विल बी सेलेक्ट, अगेन क्या डिस्प्ले करना है, दैट यू आर गोइंग टू राइट द नेम। सो पी नेम यू आर गोइंग टू राइट हियर, पी नेम कॉमा क्वांटिटी, पी नेम कॉमा क्वांटिटी वेयर, वेयर क्लॉज आ जाएगा यहाँ पे, वेयर कंडीशन आएगी इसके बाद। What is the condition here? Where price is above 5000, this means price greater than 5000। okay, price above बोला है, not equal to 5000, so price greater than 5000 we are going to write। so price greater than 5000, so this is going to execute the command number 4th, or we can say the question number 4th। ओके, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर पार्ट से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑफ द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल फॉर मोर सच क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। ओके, सो this was all about the particular question, and this question gives you itself 4 marks, and it is a very important question, and surely it is going to come in your exams as well।
And that's it for today's video on SQL in DBMS. I hope this breakdown of the previous paper question helps you understand the topic better and feel more confident for the exams. Don't forget to like, share and subscribe to Inspire IQ for more tips and tutorials to help you ace your studies. Good luck with your preparations and I will see you in the next video. Bye bye.